Good morning, students. And the information of the lecture is September 14, 2020. Class 8th, subject English. Communicate with Cambridge, the book we are reading, students. And now we are reading this unit 3rd, section A. And this is lecture number 1, students. So make sure we're going to start it. Unit 3 is Fear and Courage. Fear and Courage. Very nice title of Unit 3rd. And this is section number A is the hero. So let's just see what's in it. Courage is not something, introduction is given of fear and courage. Courage is not something we are born with. Our narrator is saying this कि courage वो चीज़ नहीं होती जिसको लेकर के हम पैदा होते हैं. It comes from within. ये अपने आप अंदर से ही पैदा होता है. From the choices we make, और जिस तरह की choices हम अपनी life के अंदर बनाते हैं. Courage lies not just in fighting a valiant war against dragons, monsters and enemies. It is also revealed in small acts of everyday life. करेज एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बड़े बड़े लड़ाई युद्ध और मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने से दिखता है, बल्कि ये ज़िंदगी के यूज़ होने वाली डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ों से भी पता चलता है. स्मॉल एक्ट्स जो हम पॉइंट्स छोटे छोटे काम करते हैं उनसे भी पता चलता है. सो हमारा नरेटर कहता है वर्क इन पेयर्स रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड डिस्कस देयर मीनिंग. करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. अब वो कहता है कि करेज जो है वो एक एब्सेंस नहीं है डर का, बट रैदर द जजमेंट दैट समथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन फियर. कि भाई डर से भी ज़्यादा कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये उसके लिए है. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. एंड सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. करेज इज रेजिस्टेंस टू फियर, मैस्ट्री ओवर फियर. करेज क्या है? डर जो है ना, डर डर के ऊपर मास्टरी करना जो है करेज है. नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, न कि डर की एब्सेंस में कुछ होना या करना. राइट. सो मेक श्योर you'll work in pairs like with your friends or family members or near dears and discuss something with them about the fear and courage. Let's see the next. There are many synonyms for courage. Some examples are mettle, resolution, fortitude, spirit, guts, strength of mind. Can you add some more words, phrases to this? Word is encourage. Put up a chart on your class bulletin board with the heading Courage is. Let all the students write their own single sentence definitions. Display the definitions under the heading. Right, everyone? So you just need to do one thing. You just need to mention this here, courage. Right. Relative courage, whatever comes into your mind, just note it down on the chart and paste it at your home also, so that you can justify the things, or rather you can just take help of the net also of courage. Right. So this was all about unit 3rd, fear and courage. Now see the next text is section A of unit 3. It is the hero, R.K. Narayanan. The hero is written by R.K. Narayanan. A warm-up exercise is given. Work in pairs. Look carefully at these pictures. Now you can see the pictures here in the this slide. Look carefully at these pictures and say one or two sentences about each picture. You need to say something about each picture. You see the pictures. In the first picture, someone is on bed and under it's a monster. And the second, third, fourth. So what these pictures are showing, you need to write one or two sentences about each picture. Is there humor coupled with fear in any of these pictures? Do you see? क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि किसी पिक्चर में जो है डर डर को जो है एक्सप्रेस किया गया है, दिखाया गया है, शो किया गया है. ह्यूमर coupled with fear, fear के साथ जो है ह्यूमर भी है, मजाक भी है. राइट. that you need to see in any of these pictures, in pictures में से. Right, everyone?
So this was all. You will just write one or two sentences about each picture. You have got four pictures here on the page. Let's go to the next. Yeah, now read this story about fear and courage. Now it's very important. Just concentrate on this, students. This will help you a lot. For Swaminathan, events took an unexpected turn. इवेंट्स मीन जो उसकी लाइफ के अंदर चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही होती रहती हैं, ऐसे ही चलती रहती हैं। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ होता रहता है स्वामीनाथन की लाइफ में, और बिना बात हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड टर्न आ जाते हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं की होती है। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प। और जो फादर थे वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे और ऊपर से जो उसको देख रहे थे, रीडिंग लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर अंडर द हॉल लैम्प एंड सैड। जो हॉल के अंदर लैम्प होता है उसके नीचे बैठे थे ताकि लाइट जो है न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छी गिर सके। और कहते हैं स्वामीनाथन, स्वामी लिसन टू दिस न्यूज़ इज hats off to the bravery of a village lad. लैड मीन्स लड़का होता है, बॉय। तो कहते हैं भी उसको बड़ी अप्रिसिएशंस और शाबाशियाँ मिल रही हैं किसको लेकर के, एक ब्रेव ब्रेव बॉय को लेकर के, ब्रेव एक लड़का, ब्रेव लड़का है एक, उसको लेकर के हैट्स ऑफ, उसको सारे के सारे सलाम कर रहे हैं। While returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. घर पर वापस आते समय जंगल में क्या हुआ, उसका जो सामना था वो टाइगर के साथ हो गया। केम फेस टू फेस विद द टाइगर, टाइगर जो है उसके सामने आ गया फेस टू फेस। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। और ये पैराग्राफ क्या करता है, डिस्क्राइब कर रहा है उस बॉय की और टाइगर के बीच जो फाइट हुई। एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री, एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री, और वो किस तरह से जो ऊपर चढ़ जाता है ट्री के ऊपर। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, जहाँ पर जो है वो आधा घंटा जो है वहीं पर रहा। वेयर ही स्टेड रहा हाफ अ डे, आधा दिन। टिल सम पीपल केम दैट वे, जब तक कि कुछ लोग वहाँ पर उस रास्ते पर नहीं आ जाते हैं। एंड किल्ड द टाइगर, और उस टाइगर को नहीं मार देते हैं। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, ये सारा पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामीनाथन फिक्स्डली, ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं, लास्ट, और उससे पूछते हैं व्हाट डू यू से टू दैट, तुम क्या कहते हो इसके बारे में, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। कॉन्स्टेंटली देखना, फिक्स्डली मीन्स ध्यान से देखते हैं उसकी तरफ, और उसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डू यू से दैट टू दैट, तुम उसके बारे में क्या कहते हो। Swaminathan said, I think he must have been a very strong and grown up person. और स्वामीनाथन का आंसर होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रोन अप मीन्स जवान और अच्छा स्ट्रॉन्ग लड़का होगा, पर्सन होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, ना कि एक लड़का होगा, वो एक आदमी होगा जो ग्रोन अप होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि एक लड़का होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कि कैसे एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है टाइगर से फाइट कर सकता है। यू थिंक यू आर वाइजर दैन द न्यूज़पेपर, तो तुम्हें क्या लगता है तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा वाइजर हो। वाइजर मीन्स बुद्धिमान। फादर स्नीयर्ड, स्नीयर्ड मीन्स होता है डिफरेंटली देखना किसी की तरफ। यू सी फ्रॉम द बुक व्हाट इट गिवन, टॉक्ड इन एन अनकाइंड वे दैट योर डिसअप्रूवल, भाई इस तरह से देखना किसी की तरफ कि जो बात कर रहा है दैट्स नॉट अप्रूव्ड, बल्कि डिसअप्रूव है उसके लिए। A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Now you see what we find here. अब वहाँ पर वो कहता है कि भाई अ मैन में हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, कि एक आदमी जो है एलिफेंट की स्ट्रेंथ इतना पावरफुल हो सकता है। एंड येट बी अ कावर्ड, और वो जो है एक कायर भी हो सकता है। इतनी पावर एलिफेंट जितनी, बट वो जो है एक कायर भी हो सकता है। वेर एज, और जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रो, एक तिनके जितनी
उसके अंदर ताकत होती है, बट ही हैज़ करेज, ही कैन डू एनीथिंग। बट उसके अंदर इतना साहस है कि वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। साहस सब कुछ है, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, ताकत, और उम्र का होना, यानी कि बच्चा है या फिर बड़ा है या फिर जवान है, उसका कोई पहलू नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आर नॉट इम्पोर्टेंट वो कहता है। यानी कि जो फादर है, द फादर ऑफ स्वामी इज जस्ट फोकसिंग ऑन द करेज इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथ एंड एज, राइट। पावर को लेकर के और स्ट्रेंथ को लेकर के वो ज़्यादा फोकस जो है करेज के ऊपर करता है, साहस के ऊपर करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू सी, राइट। सी द नेक्स्ट वन। स्वामी said, how can it be a father? और स्वामी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हाउ कैन इट बी फादर? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? कि भाई चलो मान लेते हैं कि भाई मेरे अंदर साहस है, व्हाट कैन आई डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर एक टाइगर जो है मुझ पर अटैक करता है, हाँ, लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव? चलो एक बात करते हैं, स्ट्रेंथ को, पावर को दूर करते हैं। कैन यू प्रूव यू हैव? क्या आप प्रूव कर सकते हो कि आपके अंदर साहस है? हैव करेज। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम। और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम मेरे कमरे में जो है आज रात को अकेले सो सकते हो। अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम, अ फ्राइटफुल सजेशन। स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन क्या सोचता है कि बड़ा डरावना सुझाव है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, और वो जो है ना हमेशा अपनी ग्रैनी के साइड में सोता है। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग। और ये सारी बातें सुनकर जो है, अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपने लगता है, एंड अवेक ऑल नाइट, और इसको लेकर के वो कई बार जो है पूरी रात जागता भी है। अवेक ऑल नाइट, ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, और पहले तो वो ये सोचता है, उम्मीद करता है कि उसके जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ मजाक कर रहे हैं, जोकिंग कर रहे हैं। ही मम्बल्ड अ वीक यस एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट। मम्बल्ड मीन्स बड़बड़ाता है थोड़ा सा और कहता है हाँ ठीक है, मतलब लो वॉइस में बात करता है। ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को चेंज करने की वो कोशिश करता है। ही सेड वेरी लाउडली and with a great deal of enthusiasm, we're going to admit even elders in our cricket club here after. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. और फिर जो दूसरी बात को जैसे डाइवर्ट करके वो बोलता है, उसको थोड़ा लाउडली बोलता है, इंथुजियाज्म के साथ, जोश के साथ बोलता है, और कहता है कि भाई हम जो है ना, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आर क्रिकेट क्लब, कि भाई हम अपनी क्रिकेट क्लब में जो है बड़ों को भी जो है शामिल कर रहे हैं। आपके बाद आफ्टर वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स, कि हम जो है अच्छे अच्छे बैट्स और बॉल्स खरीदने वाले हैं। और कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, कि मेरे कैप्टन ने मुझे ये कहा था कि मैं जो है ये सारी बातें आपसे डिस्कस कर लूँ। दिस वॉज टोल्ड बाय द कैप्टन। अल्टीमेटली स्वामी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द टॉपिक, और divert the topic so that his father should not think about letting him sleep in the office alone. That was very critical for Swami, though he tried to just divert the topic. We'll see about it later. Father cut in. और फादर जो है उसकी बात को कट के कहते हैं, चलो ठीक है इसको बाद में देखेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, कि तुम्हें जो है ना आज बड़ा अकेला सोना है, अलोन सोना है अब। Swaminathan realized that the matter had gone beyond his control, और स्वामीनाथन को ये रियलाइज़ हो गया कि जो मैटर है उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। बियॉन्ड हिज कंट्रोल, फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड। ही न्यू, उसे पता था कि अ प्लेन कमांड, ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट, और फ्रॉम चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमेंट। ये बिल्कुल एक तरह से जो है बिल्कुल ऑर्डर की तरह था कि भी उसे जो है अब वहाँ पर सोना ही है। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी मीन्स होता है
the quality of being very strong minded. Tenacity means the quality of being very strong minded. यानी कि जो उसके father था, he was very strong minded person, that the one should do the things as he said, commanded or ordered at such moments. इस तरह की अक्षर में मोमेंट में जो है वो कहता है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता था that he was very strong minded, whatever he decided he would let me do these things. So this was see, that's enough for today's lecture, students. We'll see in the next lecture. And before ending this text, what we see the picture where they both, father and son, Swaminathan and his father, both were sitting and they were discussing these all sorts of things. This was really very important to just see this picture. That's why I just have shown you this here, so that we could see the scenario basically where father and son sitting and discussing about very important, means father is trying to fill courage in his son, and son is trying to escape from father's will or command, as he wants him to be a bit courageous or fearless. So this picture is showing something very important discussion between father and son. So dear children, just see this, understand its meaning, what does it mean by, and just try to abide in your life. Thank you very much every one of you. See you in the next lecture.